لیجو صاحب. تھینک یو چیئرمین صاحب. تو چو تو کچھاں تو چو میں لچھاں پر توکھاں ہکڑی گال پچھاں تو کہہ کے خاموش کندے اعلان ہزار مانرگو. اس کا ٹرانسلیٹ بھی کر دو نا میڈم. تم کہو تو میں کہوں نہ بھی کہوں، لیکن میں اگر نہ بھی کہوں تو اعلان اتنے ہزاروں لاکھوں ہیں کہ صرف میں نہیں ہوں اور یہ آواز جو ہے جاتی رہے گی. دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں مگر طاقت پرواز رکھتی ہے. چیئرمین صاحب، لا منسٹر صاحب نے ایکوزیشن بھی ہماری، ایجنڈا بھی ہمارا، لیکن اس میں یہ رکھوں گی کہ یہ بھی بات میری سنیں گے. ہم نے ایسے شخص کی بات سنی، ابھی تک جو بھی کیسز ہے جسٹس فائز عیسیٰ قاضی سے لے کر الیکشن کمیشن کے ممبر کی تعیناتی ہو، آپ کے سینٹ نہ ہو آپ اپنی بات یا جزائر کے حوالے سے جو بھی غلط ریفرنسز انہوں نے دیے وہ منہ کی کھانی پڑی، اور پاکستان کی لیجسلیشن الیکشن کمیشن سے لے کر جوڈیشری تک جو ہے کوسچن مارک لگایا گیا. یہ بین الاقوامی ایک خواری تھی میرے خیال میں، جو نہیں ہونی چاہیے تھی. اور سندھ کی نمائندگی کرتے جو لوگ بیٹھے ہیں وہ سندھ کے حوالے، صوبوں کے حوالے سے غلط انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں. یہ افسوس کی بات ہے. چیئرمین صاحب، اس میں کوئی شک نہیں ہے حکومت آرڈیننس کی فیکٹری ہے اور ہر چیز اہم. یہ بات بالکل درست ہے کہ یہ لیپس ہو چکا ہے آرڈیننس 28 تاریخ کو، لیکن حکومت یہ پھر سے کوشش کر رہی ہے. ابھی ہمت نہیں ہو رہی کیونکہ سینٹ میں میجارٹی ان کی نہیں ہے، اور ہمارا جو ریزولیشن تھا، جو رولز آف پروسیجر سینٹ کے تھے 145(2) کے موجب، وہ جیسے ہی آتا ہم اس میں ریزولیشن لاتے جو ساری پارٹیز کی طرف سے ہم نے یہاں موو کیا تھا. اس ڈر کے مارے یہ نہیں لائے، کیونکہ اس میں یہ ہے کہ ایک دفعہ لے ہوگا تو پھر ہم ریزولیشن لے آ سکتے تھے اور اس کو جو ہے منسوخ کیا جانا تھا. وہ ایک دفعہ منسوخ ہو جاتا تو منسوخ ہی سمجھا جاتا، لیکن انہوں نے بھاگتے رہے، پارلیمنٹ سے بھاگتے رہے. آرٹیکل 97 کی بھی غلط انٹرپریٹیشن کی گئی ہے، 172(2) کو دیکھا ہی نہیں گیا، اور 142 کو بھی. یہ سارے کے سارے آپ کا جو پروونشل ڈومین ہے اس کو وہ کرتے ہیں. آئین کے موجب 18 امینڈمنٹ کے بعد پانیوں کے حوالے سے 3 آپ کے جو ہے باتیں طے ہیں. ایک جو حصہ ہے وہ ٹیریٹوریل واٹر سے آپ کے جو علاقائی پانی جو صوبوں کے حوالے سے آتے ہیں. دوسرا انٹرنیشنل واٹرز جو آپ کے جو ہے فیڈرل اس میں ڈومین میں آتا ہے. تیسرا جو ہے آپ کے بندرگاہ، چاہے چھوٹے ہو بڑے ہو، چھوٹے جو ہے اس کا ڈومین وہ پروونشل اس میں بنتا ہے. پھر آپ کا جو ہے انٹرنیشنل جو یونائٹڈ نیشنز کی جو کنونشن ہے اس میں بھی یہ ہے، اور یہ ہمارے آئین موجب بھی یہ ہے کہ آپ کے 12 ناٹیکل مائلز یعنی تقریباً 22 کلومیٹرز تک جو ہے سمندر کے اندر جو بھی معدنیات ہیں، جو بھی آپ کی زمینیں، جو بھی آپ کے جزیرے ہیں، وہ سارے کے سارے پروونشل اس میں ہیں. شہید بھٹو نے کبھی ہی نہیں کہا تھا کہ آئی لینڈز جو ہیں فیڈرل گورنمنٹ کو دیے جائیں. اور 18 امینڈمنٹ کے بعد میرے خیال میں یہ تو بڑے ہی غلط انٹرپریٹیشن یہاں وہ بھی لا منسٹر کر رہے ہیں. بڑے افسوس کی بات ہے، بڑے افسوس کی بات ہے. میں لا ضرور پڑھی ہوں، لیکن میں کوئی پریکٹس کبھی بھی نہیں کی، نہ میں نے جوائن کی ہے کورٹ. لیکن جو ہر بندہ جو سمجھتا ہے وہ یہ تو بڑی عام سی بات تھی. اس میں تو میں بات بھی نہیں کرنا چاہ رہی تھی کیونکہ، لیکن یہاں سے لا منسٹر نے یہ بات کی ہے تو میں اس پر ضرور بولنا چاہوں گی. 97 کا انہوں نے بار بار حوالہ دیا ہے، آرٹیکل 97 کا. اس میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ جو ڈومین ہے آپ کا، وہ جو بھی پار جو ہے لاز بنانے کا، وہ اس کا تعین ہے، اس کا آئین میں تعین ہے. یعنی جو پروونشل ڈومین میں ہوگا، جیسے پورٹس ہیں تو پورٹس کے اندر جو اگر بات نہیں بنتی پروونشل اس میں تو سی سی آئی میں آپ جا سکتے ہیں، فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ 2 میں وہ اس کا ہے. لیکن آئی لینڈز بالکل جو ہے کلیئرلی کہا گیا ہے کہ یہ صوبوں کا ہے، اور یہ نو نہیں ہے جنرل صاحب، سینکڑوں آئی لینڈز ہیں. اور یہ پاکستان آئی لینڈ اتھارٹی پیٹا جو ہے، یہ صرف سندھ نہیں، سندھ بلوچستان کے سینکڑوں آئی لینڈز میں فیڈرل گورنمنٹ کی نظر ہے. یہ غاصب ہیں، یہ قبضہ خور ہیں، یہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں. ساری سندھ نے اس کو رد کیا ہے، سندھ کے بچے نے رد کیا ہے. سندھی ہو، اردو ہو، بلوچ ہو، کچھی ہو، پورے سندھ کے خواتین نے، مردوں نے، پوری سندھ اسمبلی نے اس کو جو ہے وہ یونانی مسلس کو رد کر کیا ہے. اور یہ حکومت ابھی بھی اڑی ہوئی ہے، ابھی بھی غلط قسم کی لیب جسٹیفیکیشنز لے کر آئی ہے، جس کو میں اس کی مذمت بھی کرتی ہوں. مجھے ہنسی بھی آتی ہے کہ یہ کیا کہا گیا. ابھی اس میں جو ہے آرٹیکل 172 اس میں بھی کلیئرلی کہا گیا، یعنی آپ سی سی آئی میں بھی آپ کو نہیں جانا ہے. اگر پورٹس کی بات ہوتی تو پھر آپ سی سی آئی میں جا سکتے تھے، ورنہ اس حوالے سے آپ نہیں جا سکتے تھے. آرٹیکل 1 کی بھی یہ وائلیشن ہو رہی ہے. یعنی ایک
दो आर्टिकल्स की बात नहीं है, आर्टिकल 1 की भी वायलेशन हो रही है। यानी जो आपके आइन के मूजिब सारी चीजों की तायुन है, एक डायरेक्शन दी गई है, उस हवाले से ये एक जो है एक खुली वायलेशन है, ये सूबे को मानना चाहिए, फेडरल गवर्नमेंट को। जो लेटर की बात की गई थी इसमें कहीं भी उसको रद्द, सीएम सिंध रद्द कर चुके हैं, उसको उन्होंने झुटलाया इस बात को, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर इस चीज को रद्द कर चुके हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध चैप्टर उसको रद्द कर चुका है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मरकजी जो पार्टी के सरबराह है वो रद्द कर चुके हैं। चेयरमैन बिलावल साहब बार बार कह चुके हैं कि ये सिंध के और बलोचिस्तान की मिल्कियतें हैं और इनको कोई भी अथॉरिटी या पावर नहीं है जो उस पर आकर वो करें। लेकिन यहां चूंकि बात यह है, मैं उस दिन स्पीच सुन रही थी प्राइम मिनिस्टर साहब की मियांवाली में कि भाई ये जो सीमेंट और गारे की जो डेवलपमेंट है ये इतनी माना नहीं रखती, ह्यूमन डेवलपमेंट जो आपकी मेंटल आपकी प्रोग्रेस है पाकिस्तानी यूथ और लोगों के लिए, और जहां रहते हैं इंडिजिनस लोग, इंडिजिनस राइट्स की बात कर रहे थे। मुझे नहीं पता था कि मैं रोऊं या हंसूं। यानी सिंध के लोग तकरीबन कम से कम 8 लाख माहीगीर, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन के अलावा भी 8 लाख माहीगीर आपके जो है वो आप उनको अपने जो माहीगीरी से यानी उनको दूर होना पड़ेगा। और इस हवाले से क्योंकि यहां कमीशन का चक्कर है। और फिर क्या कहा गया जब मैं रेजोल्यूशन लेकर आ रही थी, एक तरफ तो जो गवर्नर सिंध वो यात्रा पे निकले, उन्होंने समझा सिंध के लोग जो एवे हैं, मैं जाऊंगा फेडरल गवर्नमेंट का मैसेजर बनकर, उन्होंने सबसे मुलाकात की, सबसे उनको जो है मुंह की खानी पड़ी। जिस दिन मैं यहां रेजोल्यूशन पेश कर रही थी, इनडायरेक्ट डायरेक्ट में हम पर भी प्रेशर था, बहुत प्रेशर था। यह कहा गया कि चाइना के हवाले से जो भी प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं आप उसकी कैसे मुखालिफ। मैंने कहा पहले तो ये चाइना का प्रोजेक्ट नहीं है, और चाइनीज गवर्नमेंट जो है, जहां मैं उस पार्टी से ताल्लुक रखती हूं जहां शहीद भुट्टो ने शुरुआती जो है चाइना के साथ एक अनटूट और एक मजबूत दोस्ती की बुनियाद जो रखी थी, हकीकत में वो तब रखी गई जो वो वजीर खारजा थे भुट्टो साहब। उसी तरह मैं उस फैमिली से ताल्लुक रखती हूँ। सिंध में चाइना को इंट्रोडक्शन ही जो है वो रसूल बख्श पलीजो साहब ने कराया था। चाहे माओ ज़ेडुंग की लिटरेचर हो, चाहे चाइना की हिस्ट्री हो, जो भी हो, मुशाहिद हुसैन साहब बैठे हैं वो गवाही देंगे। तो हम तो चाइना का लिटरेचर यांगमो को पढ़ते हुए हम बड़े हुए हैं, और सीपेक को हम दिल से जो है उसको जो अच्छी चीजें हैं उसको करते हैं। ये हमें न बताएं। मैंने कहा अगर चाइना की तरफ से भी ये चीज होती और ये सूबों के हवाले से ये वायलेशन होती, सूबों के हक पर ये डाका होता, तो भी हम जो है इसके हवाले से जो है न सिर्फ ऐवानों पर, रस्तों रोडों पर भी हम इसकी जो है मुखालफत करेंगे। और ये चीज अब तो तय भी हो चुकी है। तो ये मुख्तलिफ मुल्कों के साथ MOU, वो भी तब जब सिंध गवर्नमेंट उसकी मुखालफत कर चुकी है। बलोचिस्तान में ये रेजोल्यूशन आई, चेयरमैन साहब भले वहां आपकी पार्टी मेजॉरिटी में हो, यकीन करें कि वहां के एक मेंबर ने जिन्होंने ये पास की, वहां जो नहीं भी था उन्होंने भी कहा कि हम पहले दिन पास करना चाह रहे थे, तो वो जो कोई शोर शराबा पता नहीं क्या हो गया वो नहीं करनी, लेकिन जब दूसरे दिन हम थे और ये हम बाहर गए ये हो गए, वरना और भी ज्यादा मेजॉरिटी से हम पास करते। यानी उनका भी दिल हमारे साथ, सिंध के साथ, पाकिस्तान के छोटे सूबों के साथ, बलोचिस्तान के भाई बहनों का धड़कता है। और उसकी जो है बड़ी मिसाल यहाँ सेनेटर मीर कबीर साहब की स्पीच है, उससे पहले उस्मान काकर साहब आज भी बोलेंगे, उनकी स्पीचेस है। यहाँ हमने बहरा इस चीज को उठाया है, लेकिन जब भी तफसील की बात करने की आती थी बात, तो आप कहते थे कि इस पर मोशन लाना चाहिए। मोशन से मांग रहे हैं हमने बारहा रेजोल्यूशन के साथ, आपको पता भी होगा उसमें सारे जो रिकॉर्ड में मौजूद है, लेकिन सेशन नहीं हो रहा था और ये भाग रहे थे जब आएगा तो हमारी रेजोल्यूशन आ जाएगी, हम उसको जो है वो कर देंगे, रद्द कर देंगे। अब इस हवाले से अजीब सी बात यह है कि एक तरफ सिंध की गैस बंद है। चेयरमैन साहब ये आप प्लीज सुने, ये आएगी एजेंडा पे, उस पर भी बात करेंगे। गैस बंद है, जो 70% तक जो है सूबा गैस प्रोड्यूस करता है, उसके अपने हिस्से की भी गैस नहीं दी जा रही। सख्त बदतरीन लोड शेडिंग है और कह रहे हैं कि ANG आप जाकर जो खरीद करें। ये 158 की जो है वायलेशन है। और दूसरी तरफ सिंध बैराज पे मैं 5 सालों से यहाँ चीख रही हूँ, 4 सालों से आपके वापडा के चेयरमैन नहीं आए। बैठे हैं सेनेटर शमीम साहब, जो मैं तो नेक्स्ट टेन्योर में यहाँ नहीं होंगी, लेकिन यहाँ रिकॉर्ड पे ये चीज मौजूद है, रिकॉर्ड पे ये चीज मौजूद है कि जो हमने वहां मोशन हम लाए थे, वहां वापडा के चेयरमैन ने, या सिर्फ नैब के चेयरमैन की बात होती है, लेकिन वापडा के चेयरमैन
लैब के चेयरमैन तो आ चुके हैं मेरे मोशन पर जो है ह्यूमन राइट कमेटी में मिसिंग पर्संस के हवाले से हमने बात उठाई थी। वापडा के चेयरमैन क्या खुदा ना खासा आसमान से उतरे हुए सिंध बैराज के हवाले से, क्योंकि वो डर रहे थे। वो कहते हैं मेरा ये ब्रेन चाइल्ड है, हमारा प्रोजेक्ट है। भाई सिंध में जहां आप ठट्टा में बनाना चाह रहे हैं हमारे जिले में, मेरे जिले में, वहां का लेजिस्लेटर वो कह रहा है कि हमें भी ऑन बोर्ड ले बताया, और ये रिजर्वेशन से आप नहीं बना सकते। और फिर कल भी सिंध गवर्नमेंट ने कहा है कि ये पॉसिबल नहीं है, ये फिजिबल नहीं है, इसका ये जो है मुमकिन नहीं है कि आप इंडिजिनस लोगों पर, आप वहां रहने वाले लोगों पर हुकूक पर मुसलसल डाका डालें। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सेंसस के हवाले से भी वैलिडेशन सीसीआई में हुई नहीं है। कैबिनेट में 3 रुकनी जो है कमेटी वो मिनिस्टर्स के बनाकर वो ये कह रहे हैं कि ये चीज हो गई। कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन और बार बार वायलेशन, एक बार नहीं बार बार। ये पीटीआई की जो है ये कंप्लीट, ये मुकम्मल उसका फेल्योर है कि एक तो यहां मिनिस्टर्स ऐसे रखे गए हैं जो आते हैं एक सूबे से हैं, उसी की कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन, और उसमें डिटेल से खड़े होकर कहते हैं कि ये इंटरप्रिटेशन है। और ये सारी की सारी जो आर्टिकल्स उन्होंने आज कहे हैं उनको पता है। वहां वकील जो है शोहब ओस्तो साहब, उन्होंने भी कहा है, खुद जो अटॉर्नी जनरल ने कहा है ये सूबे की मिल्कियत है। खुद आप रिकॉर्ड मंगाकर आप यू कैन गो थ्रू इट, यू कैन रीड इट। जो भी उन्होंने कहा है कि हमने क्लेम नहीं किया है, ये अटॉर्नी जनरल कह रहे हैं। उनको कम से कम आंखों में पानी हया का था कि वो सिंध का खाते पीते छोटे सूबे से हैं, वो इतनी गलत बयानी कैसे करेंगे। लेकिन यहां वो लॉ मिनिस्टर, उनके साथ जाती दुश्मनी मेरी नहीं है, वो मेरे भाई होंगे, लेकिन जिस तरीके से जो है उन्होंने समझा जजायर का भी मामला जो इलेक्शन कमीशन की जो तैनाती वाला था, उन्होंने समझा शायद ये भी जस्टिस फाइज ईसा वाली रविश थी। उन्होंने समझा जैसे सेनेट के ओपन बैलेट पे सारी कॉन्स्टिट्यूशनल जो है उसको वायलेट करके जो है आप जो अमेंडमेंट जो है आप 2/3 मेजॉरिटी के अलावा आ भी नहीं सकती। आई एम श्योर कि सुप्रीम कोर्ट उस पर जो है नजरसानी जरूर करती है, भले जवाब मांगे सुबह असेंबली से दूसरे से। लेकिन ये चीज जैसे ओवरसीज के हवाले से अभी भी हमें कमेटी की मीटिंग करने की आपने इजाजत पता नहीं दी है या नहीं दी है, लेकिन मैं 2 महीनों से इंतजार कर रही हूँ। उसमें एक एजेंडा ये भी है, एक एजेंडा ये भी है कि उन्होंने कहा पार्लियामेंट से पूछेगा ओवरसीज के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमारे पास न लेकर आइए, आप जाएं वहां से जो है रिपोर्ट लेकर आइए। मैं तो जगह अगर कमेटी में भी जाऊंगी, अगर जो भी जमहूरी तरीके से बात होगी, लेकिन वहां भी हम कहेंगे कि हाउस की होल कमेटी जो है बननी चाहिए। और उसमें ये, क्योंकि ये सीरियस बातें होती हैं, ये लेजिस्लेशन जो है ये आप पार्लियामेंट के उन्होंने जूते की नोक पर, खुदा न खासा ये बड़ी मायूब बात है, लेकिन ये चरखना चाहते हैं एज इफ ये समझते हैं कि घर की उनकी कोई चीज है, बाप की जागीर है। इस तरह नहीं है, ये मुल्क इस तरह नहीं चल सकता कि एक तरफ आप जो है सूबों की वायलेशन कर रहे हैं राइट्स की, इंडिजिनस लोगों के जो है आप कंधों पर पैर देकर फिर आगे बढ़ना चाहते हैं। आप नहीं बढ़ सकते, आप नहीं बढ़ सकते। आपकी आइडेंटिफिकेशन जो है वो खत्म हो जाएगी, आपका नाम खत्म हो जाएगा। आप 2 सालों के टेन्योर के लिए, 5 सालों के टेन्योर के लिए जो है आप समझते हैं आपके सर पर सरखाब के पर निकल आएंगे, ये हो ही नहीं सकता। यहां जो पाकिस्तान बनाया है तो उसमें जो है 1940 वाली रेजोल्यूशन, उन्होंने बात रूसों का मिसाल दिया, सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात की उन्होंने, तो उनको फिर कई सैकड़ों ऐसे भी मैं कोट यहां लोगों को कोट कर सकती हूं जिन्होंने क्या बात की, पाकिस्तान से जिना से लेकर जो है खुद जो है अल्लामा इकबाल तक की शायरी या हमारे दूसरे लोग जो है, उसमें 1940 रेजोल्यूशन जिसमें सूबे राजी हुए थे उसमें यही था, जहां आपकी जो है हर जुरिस्डिक्शन अलग होगी, उनको खुद मुख्तारी और राइट्स होंगे। लैंग्वेज की भी बात की गई थी। अब 23 मार्च तो मनाया जाता है, लेकिन 1940 रेजोल्यूशन की जो है उसका मकाम कहाँ है आज, वो शायद ये जिना कि आप नीचे बैठे हैं तस्वीर पे, हम भी तो सामने देखते हैं, लेकिन इनको ये गौर जरूर करना चाहिए, गवर्नमेंट साइड को देखना चाहिए कि ये टेन्योर होते हैं 1-2 साल के, 6 सालों के, 10 सालों के, उसके बाद आपको लोगों में आना पड़ता है। ये लोगों से भागते हैं। ऐसे ही ये कोयटा में हुआ था, कोयटा में ताज़ियत भी कैसे ली गई, जिद तो पूरी कर ली, लेकिन तारीख में एक धब्बा आ गया। एक वो एक दिन था ब्लैक डे, वो जब ये 10-11 हमारे कारकुनों की शहादत हुई, पाकिस्तान के बेटे थे वो, और उस पर सारी कौम जो है वो तकलीफ उन्होंने महसूस की। एक दिन वो स्या था जब वो जिद पूरी करके आए, लेकिन उसका कुछ भी नहीं बना। वो खोखले हो चुके, प्राइम मिनिस्टर खोखले हो चुके। उनको जो कौम का बाप बनकर जो देखना था, उन्होंने जो है अपनी हवाले से वो नीचे इतना कर दिया स्टैंडर्ड कि लोग उनको सीरियसली अब तो ले ही नहीं सकते। तो इस हवाले से इस हाउस में जो भी डिबेट हो, कम से कम उन लोगों को, उन सूबों को जो है, जो हकीकी जो लोग नुमाइंदगी कर रहे हैं, उनको बारी दी जाए, जो बात करना चाह रहे हैं, जिन्होंने इतने दिनों से जो वेट किया है। बाकी ये कहना कि ये
جنرل صاحب کی ان کی بات پارلیمنٹ کی سپریمیسی اس حوالے سے کوٹ کی، لیکن آپ آئین پہ یقین نہیں رکھتے جہاں سے ہم اسٹرینتھ ڈرائیو کرتے ہیں، تو آپ کون سی پارلیمنٹ چلانا چاہ رہے ہیں؟ آپ ہر چیز آرڈیننس پر بیٹھ کر، اس پر دم پر بیٹھ کر جو ہے اڑان بھرنا چاہتے ہیں، یہ اڑان ہو ہی نہیں سکتی، یہ پسمائی کی طرف آپ کو لے کے جائے گی۔ بہت شکریہ چیئرمین صاحب۔ آجی نواز کوکر صاحب جو ہمارے فارمر ڈپٹی اسپیکر تھے، فیڈرل منسٹر بھی تھے، ایم این اے بھی رہے، انہوں نے انتقال کیا تھا، ان کے لیے دعا کرتے ہیں رائے صاحب۔ اگر مولانا فیض محمد صاحب۔ اللہم صلی علی محمد۔